Hello, people. Welcome to Times Cat Prep Stories. And today we have a special guest with us, Shivji Ramakrishna, who had scored a 99.99 percentile in CAT 24 and was also the Gujarat state topper for the same. And the plus point is he has converted IIM Ahmedabad. So today we are going to have a very creative conversation with this guy because he is also graduated from IIT Roorkee. So welcome to the podcast, Shivji. Thank you, sir. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? कैसा Yeah, फील हो रहा है? yeah, for sure it feels quite great because when I was in second year, third year, बहुत uncertain होती है कभी कभार लेके चीज़ों की, but now I have got a job also, and obviously I am Ahmedabad is cleared. So yeah, it's right now a relaxing time after a while. ओके, लेट्स गो बैक अ लिटिल बिट. मेनली वी टॉक अबाउट 10th 12th का जर्नी क्या होता है स्टूडेंट्स का. एंड आपका जर्नी कैसा था? लाइक सबसे पहले तो कौन से बोर्ड से आपने किया है? वॉज इट CBSE, ICSE या फिर अदर स्टेट बोर्ड, राइट? So I was CBSE throughout from K to 12. ओके, Both 10 12th board is from CBSE. ओके. एंड व्हाट वाज योर माइंडसेट ड्यूरिंग व्हेन यू वर इन 10th स्टैंडर्ड? Yeah, so basically 10th standard I was very like I'm young now, but 10th standard में तो यार बच्चा होता है, फिर उसको तो क्या पता इतना ज़्यादा, मतलब तब तो लगता था कि बड़े हो गए, पर अब लग रहा है कि सो यार डोंट नॉट मच, बट ड्यू टू आवर स्कूल एफर्ट्स बेसिकली आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर NTSC एग्जाम एंड इट ओपनड अ लॉट ऑफ डोर्स और बहुत एक्सपीरियंस मिला कि वैल्यूबल होता है लेटर टाइम्स के लिए, बिकॉज नॉर्मली आप 10th में किसी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपेयर नहीं करते हैं. And I don't think besides NTSC there is an exam at that level. But I prepared for it and it was helpful in a lot of ways. Now backward looking. Retroactively देखता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो उसने हेल्प की काफ़ी ज़्यादा. And when you face another exam like JEE or CAT, you have a frame of reference. It's not same, but you have a little bit frame of reference. ओके. व्हेन यू ऑफर साइंस इन 11th, IIT का सपना पहले से था या फिर क्या सीन था उस टाइम पे? Like you are asking a final year who has just shifted to MBA, you know the answer partially. Yeah, but again, at that time you are very young. So what one two things I had in mind was you cannot be 100% certain, but what I thought कि जो JEE का competition है और it is एटलीस्ट 70-80% करेक्ट कि जो वैल्यू होती है कोर्स में कई बार आपके कोहोर्ट से निकल के आती है. इट्स नॉट द इंस्टीट्यूशन आपके कंपेनियन वगैरह. सो आई नो दैट कॉम्पिटिशन विल टीच मी अ लॉट ऑफ थिंग्स. So yeah, preparing for JEE is an event to say the least. If we can go deep in it, but that's for a whole different topic. So I did it and then I pursued it, and luckily IIT Roorkee happened. ओके. सो कैट के बारे में तो थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे. जब आपको पता चला आप यू आर सिलेक्टेड फॉर IIT रूरकी, व्हाट वाज योर इमोशंस लाइक दैट टाइम? Yeah, that time तो I was very happy, perhaps more happy than I'm now, because उस टाइम पे तो अब उस एज के वाले के पास में और कोई ऑप्शन होता भी तो नहीं है ना. आपने 2 साल वही किया और वो हो गया, तो माइंड काइंड ऑफ गोज इन अ ब्लैंक स्टेट कि अब क्या, कि वो हो गया, प्रोसेस नहीं होता बहुत टाइम तक तो. बट या डेफिनेटली यू आर वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, एंड देन लाइफ गोज ऑन एंड यू गो टू IIT. Okay. Now tell us something about your time at IIT Roorkee. How was the overall experience academically and personally? आपने कौन से इवेंट्स में पार्ट लिए, कौन से क्लब्स को ज्वाइन किए, क्या रहा पूरा वो IIT रूरकी का जर्नी? सो डेफिनेटली IIT रुड़की आई ओपनर होता है, बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंस. दिस इज व्हेन मे बी इफ़ यू आर फ्रॉम नॉट प्रिविलेज बैकग्राउंड, पर आप किसी मेजर सिटी में रहे हो या कहीं बाहर रहे हो, दैट हेल्प्स अ लिटिल बिट. इफ़ यू आर फॉर होल लाइफ रिसाइडिंग इन स्मॉल टाउन्स इट कैन बी अ बिट intimidating. But what when you go in IIT or any institute of that matter, especially जब बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, it's in Uttarakhand, so many people are from my native belt, not particularly उड़ीसा, पर बंगाल बिहार के बहुत लोग हैं, यूपी साइड से हैं, and Uttarakhand people are all over there. Sir, there are different people, different kind, and you are
यू हैव टू इंटरेक्ट विद देम, नहीं तो चलेगा कैसे, सबसे तो नहीं कर सकते. सो या इट वाज गुड एंड bittersweet in some matters. Like academically for 1-2 years I struggled a lot. मुझे आइडिया नहीं था कि अभी किसके परसुएशन में जाना है, क्या करना है. बट यू टॉक अबाउट एक्टिविटीज, सो ऑन साइड बाय साइड बेसिकली इन आई टी यू लर्न टू प्रिपेयर 2-3 थिंग्स बाय साइड, क्योंकि आप अगर किसी टाइम पे अगर प्रोफेशनली अच्छा नहीं जा रहा, या आपको अभी नहीं मिल लग रहा कि ये लगता हुआ नहीं दिख रहा कि क्या इसका रिजल्ट होगा, तो ऐसा तो नहीं आप पूरा बंद करके बैठ जाओगे. यू हैव टू डू समथिंग. सो back then it was a different thing. I'm talking about 2021. So you just say back then a comedian getting arrested was actually a surprising news when I had joined college. So now it's daily matter. But so I pursued stand-up club and then I became a member. I went to different inter-IT competitions and I could have been secretary also, but due to some reasons it didn't happen. So I became the additional secretary of the club. And yeah, it's one of my most cherished memories. सबसे अच्छी यादों में से एक है वो क्लब को represent करना. Okay. What branch did you pursue, and did you ever consider going into core engineering, or were you always inclined towards management? So my branch was electrical. Not much thought I had put in उस टाइम पे कि क्या बोलते हैं जोसा काउंसलिंग जिसको बोलते हैं कि when you're choosing engineering, I just matched कि इस रैंक पे क्या मिल रहा है. So I got there, get into electrical, and again there are some benefits in circuital branches, electrical, EC, CSE, MNC, but you have to put a little bit of thought कि हमेशा clickable नहीं होती. Those benefits are for certain paths, and again if you are more well aware, you can have the benefit of knowing these things better. But it is certainly beneficial to me also. So I tried for a little bit. For 2 to 3 semesters I tried my hand at electrical engineering, but मैं उसमें अच्छा नहीं था. At that point I was not good at it and I didn't feel that much passionate about it than say जो मेरे साथ के लोग हैं जो रिसर्च इंटर्न करना चाहते हैं, जो रिसर्च में जाना चाहते हैं. सो आई थॉट नाउ ये पिवट करने का टाइम है. सो not particularly management, I started pursuing finance and I did some courses. I studied from here and there. I applied for internships, but at the end of third year, let's say around Jan 2024, and you have to think कि अभी I had applied for internship पर ऐसा बनता हुआ दिख नहीं रहा था कुछ. So you have to think कि क्या करना है. So मैंने सोचा प्लेसमेंट में तो बैठूंगा ही, बट साइड बाय साइड आई शुड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर कैट, बिकॉज उस टाइम चांसेस स्लिम दिख रहे थे कि शायद प्लेसमेंट ना हो पाए. Did you see a personality change when you joined IIT? या डेफिनेटली वो उसमें कुछ कहा ही नहीं आ सकता. एनीवे मतलब आप 19 के थे जब गए, और 19 के हाँ लगभग उसका, नाउ यू आर 21-22. वो मैं अपने आप बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा. प्लस आप नई जगह पे जा रहे हैं, यू मीट डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट लैंग्वेज पीपल, और इंटरेक्ट करने में, और वही स्पेक्ट्रम में दिखेंगे आपको. देर आर मैनी पीपल बिसाइड्स यू इन मैनी थिंग्स, देर आर मैनी पीपल वे अहेड ऑफ यू इन मैनी थिंग्स. सो वो नहीं रहता कभी भी कि आप वो पे भूल जाते हो कि छोटे शहर में या छोटे गाँव में कभी कभार आपको लगता है कि टॉप पे रहना, बिल्कुल 1 वाले पे 40 बंदों की क्लास होगी, 50 बंदों की क्लास होगी, पर बड़ा बैच है, पूरा कॉलेज है, तो आप कंपेरेबल भी नहीं कर सकते. अब जो मैं मैनेजमेंट में आ गया, अब जो मेरे दोस्त रिसर्च वगैरह में चले गए, आप डायरेक्ट कंपेरिजन बिठाओगे भी कैसे. बट यू सी एम्बिशन, यू सी डेडिकेशन, एंड इट हैज़ सराउंडिंग इफेक्ट, क्या कह सकते हैं, इट्स इन्फेक्शियस. Okay. How did you manage your CAT prep while being a student at IIT Roorkee? Because बहुत हेक्टिक होता है IIT में भी. तो आपने कैसे उस चीज़ को, उस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट किया? हाउ डिड यू बैलेंस योर कॉलेज एकेडमिक्स, और कैट में यू हैव क्वांट्स, यू हैव DILR, you have VRC. How did you balance that whole thing? So, yeah, anyway, managing 2-3 things is always difficult at once. But what I had was, I was lucky in some matters कि मेरा ऐसे schedule free था. Besides stand-up, I didn't have that much commitment in college or any other clubs. So, regardlessly, I have more time to play with the schedule. So, उसमें and I prepared a bit early. But like I didn't
पुट लॉन्ग आवर्स, मैंने पूरा दिन पढ़ाई नहीं की, पर मैंने ऐसे टाइम वाइज कुछ महीना पहले स्टार्ट कर लिया सबसे। फ्रॉम ऐसे मैंने वीडियोस वगैरह इंट्रोडक्टरी देखना चालू की जैन 2024, जैन 2024। देन आई स्टार्टेड गिविंग रियल पेपर्स, मॉक्स, डिफरेंट थिंग्स। और मैं कैसे करता था कि प्रैक्टिस में रखो, बिकॉज सी आई वुड, मैं जेई में एडवाइस नहीं दूंगा कि ऐसे कर लो कि बाद में देखी जाएगी अभी ये पेपर है निकाल लो। दैट इज काइंड ऑफ रॉन्ग, क्योंकि वो कॉलेज में भी एप्लीकेबल होने वाली है वो चीज़ें व्हेन यू डिड योर ग्रेजुएशन। बट इन एमबीए कॉलेज नोबडी इज सॉल्विंग, मेकिंग यू सॉल्व आरसी पैसेज। वो पेपर है, वो पेपर निकालना है, दैट्स द स्किल दे आर जजिंग। तो ईगो में नहीं लेनी चीज़ कि मेरे को ये टॉपिक करना है, आपको वो पेपर देना है, आपको वो पेपर निकालना है। सब प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और उससे यानी देयर वॉज अ टाइम ब्रांच आई थिंक आउटसाइड ऑफ कॉलेज, पर वो मैनेज नहीं हो पाएगा क्योंकि कॉलेज का एक तो फिक्स शेड्यूल है क्लासेस वगैरह का, डायनेमिक कमिटमेंट्स भी हैं। सो गोइंग टू फिजिकल क्लासेस वॉज नॉट that feasible for me, but from different sources, there are paid sources nowadays, there are also a lot of free material from there you can prepare. Okay. Also you prepared online, right? So थोड़ा सा हम आपके फादर के बैकग्राउंड की अगर बात करें, सो अहमदाबाद में भी उनका ही हैड सम सॉर्ट ऑफ वर्क जहाँ पे उनको ट्रांसफ़र लेना पड़ता था, राइट? It was not normal private sector work. He used to switch companies sometime, like when work demands. ओके. In private sector, you cannot be in one place for decades. You have to, for career growth and different reasons. कितनी बार ट्रांसफ़र हुआ है? Like from my KG, I think 4 or 5. Okay. Now, CAT prep, you told us how did you prepare? There were sources, there were online batches, right? अब what was your mindset on CAT day? क्या सोच के गए थे? कौन सा slot था? Before appearing for CAT and after giving CAT, क्या mindset रहा है आपका? Like I was lucky in one aspect कि उस टाइम पे प्लेसमेंट्स चालू हो गए थे और इट वर बेटर देन जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि इंटर्नशिप में क्या है, दे आर ओनली कोडिंग रोल्स और उसमें मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। पर व्हेन प्लेसमेंट आते हैं तो यू है बिजनेस एनालिस्ट और कई प्रोफाइल्स का कैट से सिमिलर सिलेबस है। सो वन सच कंपनी आई हैड वन शॉर्ट लिस्ट हैड कम, पर वो कंपनी घोस्ट कर गई बाद में, वो बाद की बात है, पर उस दिन तक नहीं हुआ था तो मेरी शॉर्ट लिस्ट आ गई। तो इस चीज़ का थोड़ा कॉन्फिडेंस था एंड आई हैड मॉर्निंग स्लॉट। सो आई हैड प्रिपेयर्ड बॉडी साइकिल की अलग अलग टाइम पे मॉक्स देकर कर रखा था, पर फिर भी वो मॉर्निंग वाले पे तो इतना नहीं था बॉडी। तो जब वो हो रहा है तो मैं बॉटल लेके गया हूँ, बिल्कुल ऐसा थोड़ा थोड़ा पानी आँख में डाल रहा हूँ। पर जब पेपर आता है फिर वो निकल जाता है, तब तो करना पड़ेगा व्हेन डी डे इज देयर। मैंने ये तो सबसे पहले आई रिमेंबर दैट वेरी विविडली कि वो ऐसे स्क्रीन खुला और VARC ऐसे चल रहा है, ऐसे टेक्स्ट है और जैसे यूट्यूब वीडियो पे वाटर मार्क है, वाटर मार्क में कैट 2024 आ रहा है और दैट इज गिविंग यू प्रॉब्लम इन रीडिंग। और मैंने मन में वैसे आई थिंक 2-3 सेंटेंसेस जो इधर नहीं बोले जा सकते, ये क्या हो रहा है, आपने वाटर मार्क क्यों डाला, पढ़ने में दिक्कत हो रही है अब। बट या इट luck was with me, preparation was with me. So luckily I scored 100 in VRC and 99.99 overall. Because एक लिमिट तक आप खींच सकते हो 99.5, 6, 7, बाकी में हाँ लॉर्ड शुड बी विथ यू, आपको लक का थोड़ा बहुत चाहिए एंड दैट डे लक वाज विथ मी। ओके. वी स्टिल रिमेंबर जब GD पे मॉक्स चल रहे थे, आपके IIM अहमदाबाद का जब कॉल आया था, टाइम ने आपको कैसे सपोर्ट किया एंड जो फीडबैक आपको मिला था व्हेन यू अपीयर्ड फॉर योर फर्स्ट मॉक, व्हाट वाज दैट फीडबैक एंड हाउ डिड यू इम्प्रूव आफ्टर दैट? So yeah, there are cues on verbal communication. See, आप नॉन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप नहीं भी बोलोगे, लाइक से यू आर टीचिंग इन अ क्लास, तो अगर आप नहीं बोल रहे हो तो एक तरीके से आपकी ड्यूटी, अगर स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा और वो मुंह बना ले तो टीचर को समझ में आ जाता है ये है, पर अगर आपने वो पोकर फेस रखा हुआ है तो वो नहीं समझ में आता। तो कई बार आपको ऐसे शो करना पड़ेगा कि ऐसे है। और वन अदर थिंग दैट आई थिंक इम्पैक्ट्स ऑन इंटरव्यूअर्स इज इट शोज प्रिपरेशन, कि आपने प्रिपेयर किया है। और व्हेन इट शोज प्रिपरेशन दैट मीन्स यू आर प्रायोरिटाइजिंग दिस, आप ऐसे ही नहीं आ गए। So obviously it helps a bit because you can have online mocks, you can have, but what the problem is, see, जब आप उसमें जाता है IIM में,
सो व्हेन आई चेक द इंटरव्यूअर्स प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन एक्सेट्रा, जब से मैं बॉर्न हुआ वो तब से पीएचडी लेवल रिसर्च कर रहे हैं. ही मे बी ओल्डर, अ लिटिल बिट ओल्डर और द सेम एज माई फादर्स एज. तो वो जो मॉक्स वगैरह में आप अपने से बराबर वाले में उससे करके ला ही नहीं पाओगे, क्योंकि इफ़ यू सी यू आर 20 और सामने 40-45 के प्रॉफ बैठे हुए हैं, देर आर लिमिटेड रिएक्शंस जो कि निकलेंगे ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता. बट दैट environment can is difficult to create in mocks if you arrange then themselves from your own end. But luckily time arranged it for me. Kaushal sir took one mock, and I'm sorry I'm forgetting the names, but at least three physical mocks are necessary a bit, because online again there is a communication gap in online. But if you are giving 2-3 physical mocks, mainly even if there is not feedback, आपको खुद को बहुत आइडिया हो जाता है कि ऐसे ऐसे देना है, मैं इसमें टकरा हूँ, ये है. सतीश सर ने आपको कैसे गाइड किया ये पूरे प्रोसेस में? बिकॉज वो एक वही एक गेम चेंजिंग पॉइंट होता है. अगर आपके मॉक्स अच्छे जा रहे हैं, उसके बाद आपका पीआई है, तभी उसके बाद भी कम टू नो. तो सतीश सर का क्या रोल रहा है पूरे इस इक्वेशन में? Obviously he has helped me a lot. Again, he is kind of running the whole institute, तो उनका तो रहता ही है, but he would always check personally with me. Like I think पहला mock तो उन्होंने ही लिया था, and that was online. Then there was feedback. So constantly he would check on the interviewers, mock interviewers, and me with the feedback, and gradually it gets refined. Like there are some basic things जो एक दो मौके के बाद एक्सपोनेंशियली हो जाएगा. इफ यू आर स्पीकिंग लेवल इज नॉट दैट मच, और अगर आप बॉडी इज नॉट स्ट्रेट, और इफ यू आर लुक स्केयर्ड फ्रॉम फेशियल रिकग्निशन, फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा है कि बहुत एंग्जाइटी वगैरह है, तो वो चीज़ें तो आते ही निकल जाएंगी. बट अगेन अगर आप इफ़ यू कैन अफोर्ड एंड शेड्यूल मोर मॉक्स देन इट्स प्रेफरेबल. ओके. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई एम अहमदाबाद के इंटरव्यू में आपको क्या क्वेश्चंस किए गए थे एंड हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस देयर? लाइक सो मैंने और पैनलिस्ट वगैरह से बात की थी, एंड देर वर सम पैनलिस्ट हु ग्रिल यू. व्हाट आई हैव सीन इज द मूड ऑफ द इंटरव्यू, दे हैव द पावर. अगेन they are there for many interview, you are for there for they are numerically greater than you, 2 or 3 people है there. तो उन्होंने ऐसा बना लिया कि ग्रिल करना है, तो आप उसमें कुछ कर पाएंगे नहीं. बट अगेन लक वॉज विथ मी. जितने मैंने पैनलिस्ट से पूछा, वो व्हाट माई पैनल ऑल वर सेइंग कि दे वर अकोमोडेटिंग इन द सेंस कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो दे विल शिफ्ट, कि आपको क्या आता है हमें वो जानना है, आप अपना स्ट्रॉन्ग बताओ. ऐसे गौचा मोमेंट नहीं करेंगे कि आपको ये नहीं आता. जो आता है वो बताओ, हम उससे पूछेंगे. फिर आपको फाइनेंस आता है, मैं फाइनेंस का पूछता हूँ थोड़ा बहुत. वो बाय कॉन्सिडेंस ही वॉज अ फाइनेंस प्रॉफ, सो फाइनेंस का पूछ रहे हैं. इफ़ यू से योर हॉबी इज दिस, दे विल मे बी आस्क यू टू टेल अ जोक. एंड इवन इफ दे डोंट नो, दे विल से कि अब कुछ और बताओ, इस पर हमारा एक्सपर्टीज अब खत्म हो गई है. सो दैट वॉज वेरी शॉकिंग कि ऐसा सामने से बोल दे रहे हैं कि अब जितना मैं पूछ सकता था मेरे को इसका इतना नहीं पता, आप कुछ और हॉबी बताओ या कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर बताओ, मैं उससे पूछूंगा. इन दिस सेंस दे वर वेरी अकोमोडेटिंग. जब आपको पता चला आई एम अहमदाबाद कन्वर्ट है, व्हाट वाज योर फीलिंग? Yeah, so I have what you can call partially editing है कि मेरे को कभी कभार ऐसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स का ऐसे पूरा सेटिंग वगैरह ध्यान नहीं जाता. सो आई रिमेंबर इट कि आई थिंक एग्जाम्स वर रिमेन फाइनल ईयर, फाइनल एग्जाम्स 2 वीक्स था, और वही स्टैंड अप क्लब का लास्ट फोटो शूट था. सो आई वॉज गेटिंग रेडी, प्रिपेयरिंग सूट. आई रिमेंबर आई हैड पुट ऑन द शर्ट एंड पैंट और सूट ऐसे रखा हुआ था, तब कॉल आया. कॉल मैसेज एंड सब नोटिफिकेशन इट हैड कम ऑन सम ग्रुप कि आ गया. सो आई सीन दिस अगेन. यू फॉर 1-2 मिनट तो आप फ्रीज हो जाते हो, क्या करना है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, देन यू इन्फॉर्म सतीश सर, योर टीचर्स ऑल. और बाद में तो फिर कॉलेज वाले में तो फैल ही जाना है. ओके. एंड शिवजी, मतलब आप अभी तो ज्वाइन नहीं कर रहे, यू हैव टेकन अ डेफरल, तो उसकी क्या स्टोरी है? व्हाई डिड यू चूज टू टेक अ डेफरल? एंड अभी आप ये जो आपका जो गैप ईयर है 1 साल का जो आपने लिया है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? So, this is the facility which only IIM Ahmedabad people can do, and only if you have less than 2 years of work experience कि आप थोड़ा देख सकते हो अगर आपको लग रहा है आप वर्क एक्स लेना चाहते हो तो. सो अगेन मेरे को जॉब बहुत मेहनत से बहुत पापड़ मिलने के बाद जैसे तैसे मिला था, और कोई भी और कॉलेज होता तो छोड़ना पड़ता. बट अगेन इफ यू कुड डू वर्क, यू कैन गेन अ लिटिल बिट ऑफ इनसाइट कि हाउ प्रोफेशनल सेटिंग्स वर्क, हाउ कॉर्पोरेट वर्क्स.
आई थॉट इट वुड बी यूजफुल इफ फॉर नथिंग एल्स देन मेरे खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कि आई हैव एटलीस्ट सीन कि ऑफिस की वर्किंग्स ऐसे होती हैं. सो या आई विल बी जॉइनिंग नेक्स्ट ईयर, बट फॉर इन द मीन वाइल आई विल बी डूइंग जॉब. Okay. Job in which company, in which city? So it's a financial services company in Bangalore. Okay. इसके अलावा आप कुछ करने वाले हो ये 1 साल में प्रोफाइल के लिए? Like we will see. वो तो उधर जाके आई हैव नॉट बीन फिजिकली टू बेंगलोर, पर उधर जाके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है. राइट नाउ व्हाट आई कैन गैदर कि स्टैंड अप का तो बहुत स्कोप है उधर, तो विल सी व्हेन यू गो देयर. ओके. जैसे आपने कहा आप जब आईआईटी रुड़की में थे आपने बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ किए, बट ऐसे कुछ रिसोर्सेज आप बता सकते हो स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो नॉन इंजीनियर्स होते हैं? यू आर एन इंजीनियर राइट? नॉन इंजीनियर्स के लिए ऐसे कुछ बुक्स या फिर, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे कोई मटेरियल जो आप सजेस्ट करते हो? या सो या एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैव इट्स मटेरियल, बट व्हाट आई सजेस्ट कि आप ऐसे में मत रहे कि मेरे को पूरा 100% करना है, क्योंकि वो तो कभी रीच नहीं होगा. सो यू कैन कंप्लीट द सिलेबस. और जैसे ये वाली बुक्स हैं, दीज आर टाइम बुक, तो कंपेरेटिवली दे आर शॉर्टर. एक राउंड आपका हो सकता है, तो अगर आप एक राउंड कंप्लीट कर लें तो हर सब्जेक्ट्स का, जैसे मैं बोलता हूँ कि राइट नाउ फ्रॉम द जे प्रिपरेशन वन फंडा यू कैन यूज इज कि कोई भी सब्जेक्ट कोई भी चैप्टर का लॉलीपॉप क्वेश्चन बहुत ईजी आ जाए, वो तो करो कम से कम. आपने अगर इसको 100 बनाने के चक्कर में इन तीनों के लॉलीपॉप भी छोड़ दिए, फिर तो कुछ मतलब बनता नहीं है. तो एक बार सिलेबस यू कैन कंप्लीट. एंड अगेन व्हाट मेन थिंग आई सजेस्ट इज यू हैव नॉट टू बी अ प्रोफेसर इन क्वांट्स. आपको वो 2 घंटे का पेपर सॉल्व करना है और यू हैव टू मैक्सिमाइज दैट. सो इसके भी इतना ना उड़े. अगर कोई सेक्शन बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे रहा, मे बी यू कैन सी आप अपने बाकी दोनों में थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगेन मिनिमम लेवल तो हर कुछ रखिए, और यू शुड ऑलवेज कीप इन टच विथ इट. प्रैक्टिस करते रहिए और टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस कीजिए कि वो 2 घंटे में करना है मेरे को. एंड द बेस्ट रिसोर्स इज प्रीवियस ईयर्स पेपर, बिकॉज अगेन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर पेपर दे ट्राई, बट जो पूरा आईएम वाले पेपर बनाते हैं, असली चीज़ का तो क्या सब्सटीट्यूट होगा. दे रिसोर्सेज दे हैव द प्रॉस, दे आफ्टर फुल 2-3 months committees are there in IITs in IIMs for JEE अदर एग्जाम, वो पूरा S1 के पेपर सेट होता है, तो उसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता. सो यू शुड डेफिनेटली रेफर टू एटलीस्ट डबल डिजिट नंबर ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स. सो कैन यू जस्ट नेम द बुक नंबर फॉर आवर व्यूअर्स, ताकि उनको पता चले कि क्या रिसोर्स आप प्रेफर करते हो, राइट? सो देर आर 2 books over there. So the last digit is 2006 quantitative ability. Like the long code is there, sir can read, but last would be I'm using the last digit 2006, and the other one is for 2020. This is the basic quantitative ability, and this is for special. So basically it's book number 06 and book number 20. Yeah. Okay. So Shivji, any other additional suggestion you would like to give aspirants? नॉन इंजीनियर्स का आपने सजेशन दे दिया. स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन आईआईटी, दे वांट टू परस्यू एन एमबीए, उनको कैसे चलना चाहिए? Like I don't think they will be needed in that, क्योंकि they can see people like me, their seniors in physical, but what general advice I would give is basically that only. Keep in mind, I am saying again and again, आपको वो 2 घंटे का पेपर देना है, वो ऑब्जेक्टिव है. आप साइड ऑब्जेक्टिव कुछ मत रहिए, ईगो पे मत लीजिए मेरे को ये करना है. मैनी टाइम इंजीनियर्स टेक इट इन ईगो कि मैं क्वांट में कैसे नहीं कर पा रहा, और समवन फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड गेट सरप्राइज कि मैं वीआरसी में नहीं कर पा रहा. उनको क्या फ़र्क पड़ता है, वो 1 नंबर ये 1 नंबर बराबर ही है. कीप इन टच एंड रेफर पास्ट ईयर पेपर्स. द पैटर्न दैट द रियल पेपर गिव्स इज क्वाइट इंसाइटफुल. Okay. So Shivji, nice having you with us here, and thank you so much for sharing your experience. It's very good, and it would be very helpful for other students as well. Also wishing you all the best wishes. आपका जो 1 साल आप जो जॉब करने वाले हो, आई होप यू गेन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एंड उसके बाद IIM अहमदाबाद तो है ही, राइट? सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. So guys, this was all for today, and it has been a very good interaction with Shivji. We hope कि आप भी ऐसे इस तरीके से सजेशंस लेके आपका कैट प्रेप करें, and may you get your dream college.
So this was all for today. See you in the next video, guys. Thank you.